my son Asher used to keep measuring his height against his mother's height. मेरा जो बेटा है एशर, वो अपने कद को उसके मम्मी के कद से मापता रहता था. Now that he has crossed his mother's height, these days he is measuring his height against my height now. अब वो अपने कद का जो माप है वो मेरे कद के साथ वो माप रहा है. Now I don't know who is the standard for him. हमें पता नहीं कि उसका आदर्श कौन है, me or someone taller than me. क्या मैं हूँ या कोई और है जो मुझसे ज़्यादा ऊंचा है. That time will tell, और वो समय हमें बताएगा. Paul also desires to reach the stature of a person. पौलुस भी चाहता है कि वो एक व्यक्ति के ढील ढोल तक पहुंचे. The stature of Christ, मसीह यीशु के ढील ढोल तक. He says that we have to grow up in all aspects into him. वो कहता है कि हमें सब बातों में मसीह में बढ़ते जाना है. The word sanctification refers to the process of spiritual growth, and for us Christ is the ultimate standard. ये जो पवित्र करना जो शब्द है वो हमारे उस आत्मिक बढ़ोतरी को दर्शाता है, और इस मामले में मसीह यीशु हमारा आखिरी आदर्श है. Today we will end our study of the application of the work of redemption with the topic of sanctification. आज हम उद्धार के कार्य को लागू करने की जो शिक्षा है उसको खत्म करेंगे पवित्र करने के विषय से. So let's look at what is sanctification. पहले हम देखेंगे पवित्र करने का मतलब क्या है. Now Wayne Grudem defines sanctification like this. Wayne Grudem नाम का जो लेखक है वो पवित्र करने की परिभाषा इस तरह देता है. He says, it is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. Let me repeat that. It's a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. वो कहता है परमेश्वर और मनुष्य का एक ऐसा प्रगतिशील कार्य जिसके द्वारा हम इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा पाप से मुक्त होते जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मसीह की तरह बनते जाते हैं. एक और बार दोहराऊंगा, परमेश्वर और मनुष्य का एक ऐसा प्रगतिशील कार्य जिसके द्वारा हम इस जीवन में ज्यादा से ज्यादा पाप से मुक्त होते जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा मसीह की तरह बनते जाते हैं. I found this definition of sanctification to be very simple and yet very helpful. मुझे ये जो परिभाषा है बहुत सरल लेकिन बहुत ही लाभदायक लगा. Let us focus on that second part of his definition. आए हम उस परिभाषा के दूसरे भाग पर ध्यान देंगे. Because that is at the heart of the subject. क्योंकि हमारे विषय के केंद्र में वो है. According to Grudem, sanctification is a work which on the one hand makes the believer more and more free from sin, and on the other hand more and more like Jesus Christ. Grudem के अनुसार पवित्र आत्मा एक ऐसा कार्य है, पवित्र करना एक ऐसा कार्य है जो एक तरफ विश्वासी को पाप से मुक्त करता है और दूसरी तरफ मसीह यीशु की तरह बनाता है. So it can be said to consist of two main parts. तो इसके दो मुख्य भाग है. A gradual removal of sin from our lives and a gradual becoming like Jesus Christ. तो इसके दो भाग ये है कि धीमी रीति से हमारे जीवन से पाप को हटाया जाता है और धीमी रीति से मसीह यीशु की तरह वो बनता जाता है. So here we can see a major difference with justification about which we had learned last time. यहां पर हम धर्मी ठहराने के विषय से जिसके बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा था एक मुख्य फर्क को देख पाते हैं. Justification did not bring about any internal change in us. धर्मी ठहराने से हमारे भीतर कोई बदलाव नहीं आता. It was
a legal declaration by God which gives us a new status. वो तो परमेश्वर की ओर से एक कानूनी घोषणा है जो हमें एक नया औहदा देता है. So whatever happened in justification happened outside of us. तो धर्मी ठहराने में जो कुछ भी हुआ वो हमारे बाहर हुआ. But sanctification brings about an internal change. लेकिन पवित्र करने से हमारे भीतर एक बदलाव उत्पन्न होता है. Now coming to the first part of Grudem's definition. अब हम ग्रूडम के परिभाषा के पहले भाग पर आते हैं. He says that unlike justification, sanctification is a progressive work in which both God and man are involved. वो कहता है कि धर्मी ठहराने जाने से भिन्न पवित्र करना एक प्रगतिशील कार्य है जिसमें परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही भाग लेते हैं. In the life of a believer, justification happens once for all time. एक विश्वासी के जीवन में धर्मी ठहराना एक बार होता है और वो हमेशा के लिए होता है. इट इज अ कंप्लीटेड इवेंट. ये एक ऐसी घटना है जो पूरी हो चुकी है एंड इट इज अ परफेक्ट वर्क. और ये एक सिद्ध कार्य है. However, sanctification is a process which keeps happening throughout the believer's life here on earth. लेकिन पवित्र करना जो है वो एक ऐसा कार्य है, एक प्रक्रिया है जो एक विश्वासी के जीवन भर लगातार चलता रहता है. And it does not reach perfection in this life. और इस जीवन में सिद्धता तक नहीं पहुंच पाता है. Finally, about the role of God and man in sanctification. आखिर में पवित्र करने में परमेश्वर और मनुष्य की क्या भूमिका है? Both Wayne Grudem and Louis Berkhof say that God and man cooperate in the work of sanctification. Wayne Grudem और लुइस बर्कहॉफ दोनों ये कहते हैं कि पवित्र करने के कार्य में परमेश्वर और मनुष्य सहयोग करते हैं. But there are others like John Murray who don't like that word cooperate. He would say that God's work is primary and our work is only secondary in sanctification. लेकिन जॉन मरे नामक एक व्यक्ति कहेगा उसको ये सहयोग शब्द पसंद नहीं है. वो ये कहेगा कि हमको पवित्र बनाना वो उसमें परमेश्वर की भूमिका प्राथमिक है और हमारी भूमिका द्वितीय है. We will talk more about that. इसके बारे में हम और सीखेंगे. But for the meantime, it would be good to say that both God and man have a role to play in the work of sanctification. अभी के लिए इतना कहना काफी होगा कि पवित्र करने के में परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ही एक भूमिका है. But justification is entirely a work of God. लेकिन धर्मी ठहराना जो है वो सिर्फ परमेश्वर का कार्य है. So now we have a good overview of what is sanctification. तो हमारे पास अब पवित्र करने का एक संक्षिप्त विवरण है. It is a gradual removal of sin from the life of a believer and he becomes more and more like Jesus Christ. इसमें एक व्यक्ति धीमे धीमे रीति से पाप से मुक्त होता जाता है और धीमी रीति से वो यीशु मसीह की तरह बनता जाता है. It is a process which is not perfected in this life. ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस जीवन में सिद्ध नहीं होता है. And finally, both God and the believer have a role to play in sanctification. और आखिर बात यह है कि इसमें दोनों परमेश्वर और मनुष्य की भूमिका है. The next point, अगला जो point है वो है 3 stages of sanctification. पवित्र करने के 3 चरण. Again, Grudem says that sanctification happens in 3 stages. Grudem कहता है कि पवित्र करना 3 चरणों में होता है. So when I quote Wayne Grudem or Louis Berkhof, I must admit that most of what I teach in this doctrine can be found in their systematic theology books. मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कुछ मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ वेन ग्रूडम और लुइस बर्कहॉफ का
मैं ये अंगीकार करना चाहता हूं कि ये जो शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं उसमें से ज्यादातर बातें आप उनके सिस्टमैटिक थियोलॉजी बुक्स में से पा सकते हो, बट आई मस्ट ऑल्सो एडमिट दैट आई डोंट एग्री विथ एवरीथिंग। लेकिन मैं उनके हर बात से सहमत नहीं हूं। आई माइट हैव सम माइनर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, उनसे हो सकता है कि छोटे मतभेद हो सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू यूज ग्रूडम्स 3 स्टेज सैंक्टिफिकेशन। लेकिन मैं यहां पर ग्रूडम के साथ सहमत होंगे। पवित्र करने के का जो ये प्रक्रिया है उसमें 3 चरण है, and it makes it easy for us to understand the subject of sanctification। और ऐसा करने से इस विषय को समझने में थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता है। So the first stage, तो पहला चरण, sanctification actually begins at the point of our conversion। पवित्र करने का जो शुरुआत है वो हमारे मन फिराव के समय से होता है। Before conversion, we were slaves to sin। मन फिराव होने से पहले हम तो पाप के दास थे। Sin was our master and our desire was to be obedient to sin। पाप जो है हमारा स्वामी था और हमारी इच्छा ये थी कि हम पाप के आज्ञाओं को माने। But when we repent and trust in Jesus Christ, a definite change comes into our lives। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में एक निश्चित परिवर्तन होता है। We are liberated from the bondage of sin। हम पाप के दासत्व से मुक्त किए जाते हैं। And it changes our affections and desires। और इस कारण हमारी भावनाएं और इच्छाएं बदल जाती हैं। Our desire now is to be obedient to God। हमारी इच्छा अब यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। Paul says we become slaves of righteousness। पौलुस कहता है कि हम तो धर्म के दास हो गए। हमको धर्म के कार्यों को करना पसंद है। Paul talks about this change in Romans chapter 6 and verse 17 to 18। Let us read that। पौलुस इसके बारे में रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 17वें और 18वें आयत में कहता है। आइए हम उसको पढ़े। Romans chapter 6 and verse 17 to 18। रोमियो का 6वां अध्याय 17 और 18। But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin have become slaves of righteousness। कहता है परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर अब धर्म के दास हो गए हो। So it is important that we clarify that some of these concepts here। यहां पर जरूरी है कि हम यहां के इन कुछ सिद्धांतों को स्पष्ट करें। Being a slave to sin, पाप का दास होना, it means that we did not have the power to overcome the temptations or enticements of sin। पाप का दास होने का मतलब था कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं था कि हम पाप के लालसाओं अथवा आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर सके। Therefore, even our affections and desires were towards sin। इसलिए हमारी जो भावनाएं और इच्छाएं थी वो पाप के तरफ झुकती थी। We had a dominant love for sin in our lives। हमारे जीवन में पाप से ज्यादा हम प्रेम करते थे। हमारा प्रेम पाप के लिए था। But when we believe that Jesus died and rose on our behalf, और जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा और जी उठा, this bondage is broken। तब ये जो दासत्व है वो खत्म हो जाता है। Our old self
who was a slave to sin dies. और तब क्या होता है, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो पाप का दास था, वो मर जाता है. And the slavery comes to an end. और तब दासत्व खत्म हो जाता है. Let us read what Paul says in Romans chapter 6 and verse 11. देखिए पौलुस रोमियो के 6वें अध्याय और उसके 11वें आयत में क्या कहता है. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. वो कहता है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो. And then in verse 14 he says, sin shall not master over you. और 14वें आयत में वो कहता है तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी. Rather, we now become a new creation, a new person. अब हम एक नई सृष्टि, एक नए मनुष्यत्व बन चुके हैं. Who has the power to overcome the temptations of sin? जिसके पास अब पाप के लालसाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य है. It is the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. And now there is a reorientation of our affections. और अब हमारे भावनाओं का एक पुनर्स्थापना होता है. Our desire now is to obey the commands of God as revealed in the scriptures. अब हमारी इच्छा यह है कि पवित्र शास्त्र में बताए गए परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन करें. We love to do acts of righteousness. हम धर्म के कार्यों को करना पसंद करते हैं. That is why Paul says then in Romans chapter 6 and verse 12 to 13, उसलिए पौलुस फिर रोमियो के 6वें अध्याय 12वें और 13वें आयत में कहता है, let not sin therefore reign in your mortal body to make you obey its passions. Do not present your members to sin as instruments for unrighteousness, but present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and your members to God as instruments for righteousness. वो कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. So a definite change has now come about in our moral condition. तो अब हमारे नैतिक अवस्था में एक निश्चित परिवर्तन आ चुका है. The basic software of our system has been changed. हमारा जो एक हमारे अंदर का जो बेसिक सॉफ्टवेयर है उसको बदल दिया गया है. From being a slave to sin, we have become slaves of righteousness. हम पहले पाप के दास थे, लेकिन अब हम धार्मिकता के दास बन चुके हैं. From a person who loved to sin, we have become a person who loves to do deeds of righteousness. हम जो पहले पाप करना पसंद करते थे, हम अब धार्मिकता के कार्यों को करना पसंद करते हैं. That is why Paul says, we have been sanctified. उसलिए पौलुस कहता है कि हम पवित्र हुए हैं. Let's read 1 Corinthians chapter 6 and verse 9 to 11. हम पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय और उसका 9 से 11 पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11. Focus on verse 11 there. 11वें आयत पे ध्यान देंगे. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral or idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And such were some of you. But you were washed, you were sanctified. That's talking about that definite change which has come about in conversion. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. वो कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे.
धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्त्रगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। पवित्र हुए यानी अब आपके अंदर वो बदलाव आ चुका है, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ आवर सैंक्टिफिकेशन। पवित्र होने का जो पहला जो चरण है वो ये है। एंड सम पीपल ऑल्सो कॉल दिस पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन और इवन डेफिनेटिव सैंक्टिफिकेशन। कुछ लोग इसको एक निश्चित परिवर्तन बताते हैं। Now this definite change in our moral condition does not mean that we will never sin. अब हमारे नैतिक अवस्था में ये जो एक निश्चित परिवर्तन आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी कभी पाप नहीं करेंगे। Rather we will have sin in our lives, बल्कि हमारे जीवनों में पाप जारी रहेगा। But this definitely means that we cannot be dominated by sin. लेकिन ये बात तो सत्य है कि अब पाप हम पर प्रभुता नहीं कर सकता है, अब पाप हम पर हावी नहीं हो सकता है। Sin cannot rule over us. After a conversion, we might have got victory over sinful patterns of behavior. हमारे मन फिराव के बाद शायद हमने पापमय जीवन शैलियों पर विजय प्राप्त किया होगा। Maybe we have victory over abusive speech, over laziness, over anger, but there are some sins that just don't seem to go away. हमने शायद गाली गलौज पर, आलस पर, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन ऐसे कुछ पाप है जो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। Maybe falling for certain sexual temptations like watching pornography. उदाहरण के रूप में शायद अभी भी कुछ प्रकार के लैंगिक लालसाओं में आप पड़े हैं, जैसे कि अश्लील चित्रों को आप आज भी देखते हो। But we must never say, I give up, or I don't think I can win over this temptation. हमें कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने हार मान लिया है, इस लालसा पर तो अब मैं कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं। Because that is like saying sin still rules over me. ये बोलना तो ऐसा होगा कि पाप आज भी मेरे ऊपर प्रभुता करता है। We must remind ourselves of this truth that we are now free from the bondage of sin. हमें हमेशा हमको अपने आप को याद दिलाना है कि हम पाप के दासत्व से मुक्त हो चुके हैं। It cannot rule over us. वो हम पर हावी नहीं हो सकता, वो हम पर प्रभुता नहीं कर सकता। We have the power to overcome that sin. हमारे पास वो सामर्थ्य है कि हम उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। And by the grace of God and through the power of the Holy Spirit, we can overcome it. परमेश्वर के अनुग्रह से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। We must continue to pray about it. हमें उसके बारे में प्रार्थना करना है। We must confess it and ask God for forgiveness. उसका अंगीकार करना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना है। We must seek another believer's help to overcome it. हमें दूसरे एक विश्वासी से मदद मांगना है उस पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। We must continue to fight the spiritual battle. आत्मिक जो युद्ध है उसको हमें लड़ते रहना होगा। द सेकेंड स्टेज, दूसरा जो चरण है, सैंक्टिफिकेशन। नाउ सैंक्टिफिकेशन बिगिंस एट द स्टेज ऑफ कन्वर्जन, बट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट आवर क्रिश्चियन लाइव्स। मन फिराव के समय पर हमारा जो पवित्र करने का जो प्रक्रिया है शुरू तो हो गया, लेकिन वो जारी रहता है हमारे मसीह जीवनों भर। And that is the second stage, our ongoing sanctification. हमारा जो लगातार पवित्र बनते जाना, ये दूसरा चरण है। And when we generally speak about sanctification, we are talking about this stage. और जब हम पवित्र करने के बारे में बात करते हैं, हम वैसे इस
चरण के बारे में बात करते हैं, हमारा जो एक लगातार जो बदलाव आना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं. Although we have been liberated from the bondage of sin and our affections have been transformed, भले हम पाप के दासत्व से छूट चुके हैं और हमारी भावनाएं परिवर्तित हो चुकी है, we still continue to live like the old man who was enslaved to sin. हम आज भी उस पुराने मनुष्यत्व के अनुसार जीते हैं जो पाप के दासत्व में था. Because we are engaged in a spiritual warfare where our enemies are constantly trying to keep us in the old lifestyle. क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं जहां पर हमारे दुश्मन लगातार हमें उस पुराने जीवन शैली की ओर ले जाना चाहते हैं. Our enemies being the world, the devil and our own fleshly desires. हमारे दुश्मन यानी कि ये संसार, शैतान और हमारा शरीर की लालसाएं. That is why Paul says in Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world. इसलिए पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय दूसरा आयत में कहता है, इस संसार के सदृश न बनो. And in Ephesians chapter 4 verse 17 says, walk no longer as the Gentiles also walk. जहां वो कहता है कि तुम अब अन्य जातियों के जैसे न चलो. Paul says that since we have been liberated from the bondage of sin and have new affections, we must now reverse the process that was working in that old man. पौलुस कहता है कि अब हम पाप के दासत्व से छूट चुके हैं, अब हमारी भावनाएं जो है वो परिवर्तित हो चुके हैं, अब हमें उस प्रक्रिया को उलटना है जो पुराने मनुष्य के अंदर कार्य कर रहा था. The old man sinned and each sin led him to further sin. पुराना जो मनुष्य है वो पाप करता था और हर पाप उसे और ज्यादा पाप की ओर ले जाता था. But now the new man must practice more and more righteousness leading to sanctification. लेकिन अब वो नए मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा धार्मिक कामों को करना है जो हमें पवित्रता की ओर ले जाएगी. In Romans chapter 6 and verse 19, Paul says this. रोमियो का 6वां अध्याय 19वें आयत में पौलुस ये कहता है, I am speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness leading to sanctification. मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसा तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. But in sanctification, our goal is not just to reduce sin in our lives. As Pastor Jeremiah said, that's just the one part of it, right? आज भाई जरमाया ने हमसे कहा कि पाप से मुक्ति पाना सिर्फ उसका अंत नहीं है, वो तो सिर्फ एक भाग है. But the other and the more important part is to become more and more like Jesus Christ. लेकिन जो दूसरा भाग है वो ये है कि हमको मसीह यीशु की तरह बनना है. To become spiritually mature, आत्मिक रीति से परिपक्व बनना है. Read what Paul says in 2 Corinthians and chapter 3 and verse 18. आइए हम दूसरे कोरिन्थियों के 3 अध्याय और उसके 18वें आयत को हम पढ़े. वहां पर पौलुस क्या कहता है? 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. दूसरा कोरिन्थियों का 3 अध्याय 18वां आयत. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. लिखता है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. In the context, Paul says that his Jewish contemporaries could not see Christ in the scriptures.
because there was a veil over their minds. पौलुस उस संदर्भ में कहता है कि उसके जो समय के जो यहूदी लोग थे वो पवित्र शास्त्र पढ़ते समय वो मसीह यीशु को देख नहीं पाते थे, क्योंकि उनके मनों पर एक मानो पर्दा पड़ा हुआ है. रीड वर्स 14 देयर, 14वें आयत को पढ़े. But their minds were hardened, for to this day, when they read the old covenant, that same veil remains unlifted, because only through Christ is it taken away. वो लिखता है परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है. So when they believe in Jesus Christ, that veil is taken away. और वो कहता है कि जब मसीह यीशु पर विश्वास करते हो तो वो पर्दा उठ जाता है. Read verse 16, 16वें आयत को पढ़े. But when one turns to the Lord, the veil is removed. वो कहता है कि परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा. And now with unveiled faces, they are now able to contemplate the glory of Christ when they read the scriptures, and that transforms them into the image of Christ from glory to glory. और वो कहता है कि अब उघाड़े चेहरे से जब वो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब वो प्रभु यीशु के प्रताप को उसमें देख पाते हैं. पवित्र शास्त्र पढ़ते समय वो यीशु मसीह के प्रताप को देख पाते हैं. और वो कहता है और ऐसा करने से मसीह यीशु के रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. Let us look at a couple of more verses which talk about this transformation into the image of Christ. दो और आयतों को देखेंगे जो मसीह यीशु के रूप में परिवर्तित होने के बारे में हमें बताता है. Romans chapter 8 and verse 29. रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 29वां आयत. Romans 8 and verse 29. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे. From eternity, it has been God's plan to conform sinners into the image of his son. अनंतता से परमेश्वर की ये योजना रही है कि वो पापियों को अपने पुत्र के स्वरूप में बनाए. I want you to read Galatians chapter 4 and verse 19. गलातियों का 4था अध्याय और 19वां आयत भी पढ़े. Galatians chapter 4 verse 19. गलातियों का 4था अध्याय 19वां आयत. This is what Paul says here. पौलुस देखिए क्या कहता है. My little children, for whom I am again in the anguish of childbirth, until Christ is formed in you. वो कहता है हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर झच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं. Paul wanted his spiritual children to become like Christ. पौलुस चाहता था कि उसके आत्मिक संतान वो यीशु के रूप में बन जाए. And God has given us means to become more and more like Christ. और परमेश्वर ने हमें माध्यमों को दिया है जिसके द्वारा हम मसीह यीशु की तरफ बनते जा सकते हैं. And we call them spiritual disciplines. और हम इसको आत्मिक अनुशासन कहते हैं. The primary spiritual disciplines are the word of God, prayer and fellowship. और प्राथमिक जो आत्मिक अनुशासन है वो है परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और संगति. Let us read a few verses. कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे. Acts chapter 20 and verse 32. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय और 32वां आयत. Acts chapter 20 and verse 32. And now I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके
मिरास दे सकता है। Paul commends the elders of the church at Ephesus to the word of God's grace. पौलुस यहां पर एफिसुस के कलीसिया के प्राचीनों को परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथों में सौंपता है। And even as these elders go back and study and preach the word of God, the church will be built into the image of Christ. और जब ये प्राचीन वापस जाएंगे, अपने बाइबल को खोलेंगे, पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसका प्रचार करेंगे, तो क्या होगा? कलीसिया यीशु मसीह की तरह बनती जाएगी। दिस इज सैंक्टिफिकेशन। ये जो है पवित्र करने को की बात कहता है। एंड दिस सैंक्टिफिकेशन विल लीड देम टू देयर इनहेरिटेंस द किंगडम ऑफ गॉड और इटर्नल लाइफ। और ये जो पवित्र करने की जो प्रक्रिया है वो उन्हें उस मिरास तक पहुंचाएगा, अर्थात परमेश्वर का राज्य, अनंत जीवन। This verse shows that one of the most important means for sanctification is the word of God. ये हमें ये सिखाता है, ये आयत हमें ये सिखाता है कि पवित्र बनने के लिए सबसे मुख्य माध्यम है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। I want you to read Ephesians chapter 4 and verse 20 to 24. मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों के चौथे अध्याय और उसके 20 से 24 तक पढ़ें। Ephesians chapter 4 verse 20 to 24. But that is not the way you learned Christ, assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. वो कहता है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। Now this passage basically says that as the mind of the believers learn Christ, he is renewed from his old way of life to a new way of life. यहां पर यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जैसे जैसे एक विश्वासी मसीह की शिक्षा को पाता है उसको नया बनाया जाता है, वो उसके पुराने जीवन शैली से हटकर एक नई जीवन शैली की ओर जाता है। एंड ही लर्न्स क्राइस्ट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, और वो मसीह की शिक्षा पवित्र शास्त्र से प्राप्त करता है। Just as reading the word of God is important for sanctification, prayer is also important. जैसे वचन को पढ़ना महत्वपूर्ण है पवित्र बनने के लिए, वैसे ही प्रार्थना महत्वपूर्ण है। And after all, sanctification is primarily the work of God. आखिर में ये जो पवित्र बनना जो है प्राथमिक रीति से तो परमेश्वर का कार्य है। That is why Paul says that the inner man of the believers at Ephesus must be strengthened. He prays to God that the believers in Ephesus, their inner man will be strengthened. उसलिए वो प्रार्थना करता है कि उसके जो एफेसस के विश्वासी है उनके भीतरी मनुष्यत्व को और बलवंत बनाया जाए। And this reading of the scriptures and praying is not done in private alone. और ये जो पवित्र शास्त्र को पढ़ना और प्रार्थना करना है ये एक निजी कार्य नहीं है, सिर्फ एक निजी कार्य नहीं है। But we need the ministry of other believers so that we may become like Jesus Christ. हमें दूसरे विश्वासियों की सेवकाई की जरूरत है ताकि हम मसीह यीशु की तरह बनते जाएं। You know, sanctification is a community project. पवित्र बनना एक समाज में होता है, कभी भी अकेले नहीं होता है। Read what Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 15 and 16. देखिए पौलुस एफेसियों के चौथे अध्याय और 15वें और 16वें आयत में क्या कहता है। Rather,
speaking the truth in love, we have to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. वो कहता है, वरन प्रेम में सत्य बोलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हरेक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए. अगर हमको यीशु मसीह की तरह बनना है तो कलीसिया के हर अंग को कार्य करना होगा. In Christian circles, sometimes justification can be so emphasized that sanctification is often neglected. अक्सर मसीही समाजों में, कलीसियाओं में धर्मी ठहरने के विषय पर इतना जोर डाला जाता है कि पवित्र होने का जो बात है उस पर जोर डाला ही नहीं जाता है. The emphasis is again and again on we are justified by faith, not by works. जोर बार बार इसी बात पर है कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते, कर्मों से नहीं. We cannot lose our salvation. हम अपने उद्धार को खो नहीं सकते हैं. So relax. तो इसलिए अब क्या है, अब तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है. Therefore, there is not enough emphasis on becoming like Jesus Christ. उसीलिए वो एक जोर नहीं डाला जाता इस बात पर कि हमें यीशु मसीह की तरह अब बनना है. By doing this, we neglect vast portions of the scriptures which talk about obedience and holiness and Christ-likeness and growing into maturity, walking by the Spirit. हम ऐसा करने से पवित्र शास्त्र में जो पवित्र बनने के बारे में जो विषयों पर बात किया गया है कि हमें आज्ञाकारिता, पवित्रता, मसीह जैसा होना, परिपक्व बनना, इन विषयों को बिल्कुल हम नकार देते हैं. And churches which take sanctification seriously talk about the importance of spiritual disciplines. और जो कलीसियाएं पवित्र बनने के विषय को गंभीरता से लेते हैं, वो आत्मिक अनुशासनों के महत्व के बारे में बात करते हैं. It has been so many years since some of us have been Christians. मसीह होकर हम में से शायद कुछ लोग बहुत साल हो चुके हैं. Can we see Christ likeness in our life? क्या हम मसीह की तरह बन रहे हैं? Maybe one important component missing in our spiritual life might be the practice of spiritual disciplines. हो सकता है कि हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासन ही नहीं है. As we do spiritual disciplines, we become more and more like Christ. हम जैसे आत्मिक अनुशासनों को करेंगे, हम मसीह यीशु की तरह बनेंगे. The church will begin to reflect the glory of Christ in this unbelieving culture. और कलीसिया इस अविश्वासी संस्कृति में मसीह यीशु की महिमा को दर्शाएगा. The third stage, तीसरा चरण. Eventually, in this life, we can mature and become more and more like Christ. But this process of sanctification is not completed in this life. हम आखिरकार इस जीवन में परिपक्व होकर मसीह यीशु की तरह बनते रहते हैं, लेकिन पवित्र होने की ये जो प्रक्रिया है वो इस जीवन में कभी पूरी नहीं होती है. We can never say in this life, we don't sin anymore. हम कभी भी इस जीवन में ये नहीं कह सकते कि अब हम पाप नहीं करते हैं. That is why the Apostle John says in 1 John chapter 1 verse 8, if we say that we have no sin, we are deceiving ourselves and the truth is not in us. उसीलिए प्रेरित यूहन्ना कहता है पहले यूहन्ना पहले अध्याय 8वें आयत में कि यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं. But when a Christian dies, लेकिन जब एक मसीही मरता है, his soul is perfected
and it enters into the presence of God. तब उसका जो आत्मा है उसको सिद्ध किया जाता है और उसका आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है. After death, the destination of every Christian soul is Mount Zion, the heavenly Jerusalem. मृत्यु के बाद हर मसीही का जो एक मंजिल है वो सिय्योन पर्वत है, अर्थात वो स्वर्गीय यरूशलेम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं. And the author of Hebrews says that in that city they assembled before God are the spirits of the righteous who have been perfected. और इब्रानियों का लेखक लिखता है कि उस शहर में, उस सिय्योन पर्वत पर, उस स्वर्गीय यरूशलेम में परमेश्वर के पास कौन आए हैं? धर्मियों की वो आत्माएं जो सिद्ध हो गई है. I want you to read Hebrews chapter 12 and verse 22 and 23. इब्रानियों का 12वां अध्याय और उसका 22 और 23 पढ़े. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect. वो कहता है कि पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास, और ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं वहां पर है. So our spirits will be made perfect before they enter into the presence of God in that heavenly Jerusalem, also called paradise. और इसीलिए जब हमारे आत्माओं को सिद्ध किया जाएगा इससे पहले कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, जो स्वर्गीय यरूशलेम में है, जिसको स्वर्गलोक भी कहा जाता है. Revelation 21 speaks about this heavenly Jerusalem. प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय इस स्वर्गीय यरूशलेम के बारे में बात करता है. There John says that nothing unclean will have access into that city. वहां पर वो बोलता है कि कोई भी अपवित्र वस्तु उस शहर में प्रवेश नहीं कर सकता है. So the soul of the Christian will be perfectly sanctified on the other side of this life. तो हमारा जो मसीहियों का जो आत्मा है उसको सिद्ध इस दुनिया के उस पार होगा, इस जीवन के उस पार होगा. But sanctification is of the whole person. लेकिन पवित्र करना जो है वो पूरे मनुष्य का होता है. Both our soul and body must become like Christ. हमारी जो आत्मा और हमारा देह दोनों यीशु मसीह की तरह बनना चाहिए. That is why let's read 2 Corinthians and chapter 7 and verse 1. दूसरे कुरिन्थियों का 7वां अध्याय पहला आयत पढ़े. 2 Corinthians chapter 7 and verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. अतः हे प्रियों, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें. And this sanctification of the flesh and the spirit will be completed at the second coming of Jesus Christ, when our bodies will be resurrected. और शरीर और आत्मा की ये सिद्धता से पवित्र बनाया जाना ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा, जब हमारा मृत शरीरों को पुनरुत्थान मिलेगा. I want you to read 1 Thessalonians chapter 5 and verse 23. मैं चाहता हूं कि आप पहले थेसलोनिकियों के 5वें अध्याय और उसके 23वें आयत को पढ़ें. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely,
and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. वो कहता है शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे. Therefore, we are looking forward to the coming of our Lord Jesus Christ. इसीलिए हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की लिए बाट जो रहे हैं. Who will transform our body into conformity with his glorious body. जो जब यीशु मसीह वापस आएंगे वो हमारे दीनहीन देह को रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. Let us read Philippians chapter 3 verse 20 to 21. फिलिपियों का तीसरा अध्याय 20 और 21. Philippians chapter 3 verse 20 and 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. एंड एट हिज कमिंग we will perfectly bear his image. That's what 1 Corinthians 15 and verse 49 also says. और जब हम वो आएगा हम उसके रूप को सिद्धता से ग्रहण कर पाएंगे. इसको पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय 49वें आयत में लिखा गया है. So the entry of our soul into heaven after death, leading up to the resurrection of our bodies at the second coming of Jesus Christ, is the third and final stage of our sanctification. तो मृत्यु के बाद स्वर्ग में हमारा आत्मा का प्रवेश करना और यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमारे शरीरों का पुनरुत्थान होना, ये पवित्रीकरण का तीसरा और आखिरी भाग है. Therefore, a believer is always looking to the future. That's Brother Jeremiah spoke about that this morning. We are looking ahead. We are looking to the future. Death does not scare us. मृत्यु हमें डरा नहीं सकती है. In fact, life after death is better. बल्कि इस जीवन के बाद मृत्यु तो और भी बेहतर है. Paul says, we prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. पौलुस तो ये कहता है हम देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं. 2 Corinthians chapter 5 verse 8, दूसरे कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 8वां आयत. He also says, don't turn to it, it's okay. He also says, I am having the desire to depart and be with Christ, for that is very much better. वो कहता है फिलिपियों के पहले अध्याय 23वें आयत में, जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा है. A believer looks forward to the second coming of our Lord Jesus Christ. एक मसीह जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जोता है. For Paul says, there is laid up for me the crown of righteousness, not only to me but also to all who have loved his appearing. पौलुस कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है और मुझे ही नहीं वरन उन सब को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं. I'm going to end soon with this last brief point. एक छोटा सा पॉइंट लेकर मैं खत्म करना चाहता हूं. The role of God and man. Let us read Philippians chapter 2 verse 12 and 13. फिलिपियों का दूसरा अध्याय और 12 और 13 आयत हम पढ़ेंगे. Philippians chapter 2 verse 12 and 13. फिलिपियों का दूसरा अध्याय 12 और 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling.
For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. इसलिए हे मेरे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है. Paul encourages the Philippians to obey even more than when he was present with them. पौलुस फिलिपी के लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो पहले से अधिक आज्ञाकारी बने. And it is by obedience that they will work out their own salvation. और आज्ञाकारिता के द्वारा वो उद्धार के इस कार्य को पूरा करते जाएंगे. In other words, by obedience they will make progress in their sanctification. कहने का मतलब है आज्ञाकारिता के द्वारा वो पवित्र बनते जाएंगे. So man has an active role to play in sanctification. इसका मतलब यह है कि पवित्र बनने में मनुष्य की एक सक्रिय भूमिका है. Therefore, it would not be wrong to say that man must cooperate in the work of sanctification. तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि मनुष्य का सहयोग जरूरी है पवित्र बनने में. But notice verse 13. लेकिन 13वें आयत पे ध्यान दे, where Paul gives the underlying motivation to obey. जहां पर पौलुस हमें आज्ञाकारी होने के लिए एक प्रेरणा देता है. He says that God is the one who is giving them the will or desire to obey. वो कहता है कि परमेश्वर ही है जो उनको उसके प्रति आज्ञाकारी होने की इच्छा देता है. परमेश्वर हमें इच्छा देता है आज्ञाकारी होने के लिए. And he also gives them the power to carry out that will or desire. और वो उन्हें सामर्थ्य भी देता है ताकि वो उस इच्छा को पूरा कर पाए. Therefore, it is right to say that God has the primary role in sanctification. तो ये बोलना भी ठीक होगा कि परमेश्वर की प्राथमिक भूमिका है हमको पवित्र बनाने में. While man has the secondary role, लेकिन मनुष्य की भूमिका द्वितीय है. Without God providing the will and power, man cannot hope to make progress in sanctification. परमेश्वर की ओर से इच्छा और सामर्थ्य मिले बिना एक मनुष्य को पवित्र होना नामुमकिन है. And that is why we have this great assurance that one day our sanctification will be complete. इसीलिए हमारे पास ये आश्वासन है कि एक दिन हम पवित्र बन जाएंगे, सिद्धता से पवित्र बन जाएंगे. I'll end by reading Philippians chapter 1 and verse 6. फिलिपियों का पहला अध्याय 6वां आयत पढ़कर मैं खत्म करूंगा. Philippians chapter 1 verse 6. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा.